A very good morning to all of you, dear students. Today we are going to discuss the summary of chapter 10. Name is The Sermon at Banaras, written by Betty Renshaw. Student, The Sermon at Banaras is a chapter which is written by Betty Renshaw. This chapter covers the journey of Gautam Buddha from princehood to his saintly life. After seeing the suffering of the world, he decided to give up all worldly pleasures and seek enlightenment. He finally attained salvation under a tree at Bodh Gaya. His first sermon was delivered at Banaras near the bank of the Ganges. Kisa Gautami was the first one to receive this sermon. Now, I am telling you some characters which is used in this chapter. First is Buddha. Gautam Buddha is the founder of the religion Buddhism. He was a spiritual teacher who had gained enlightenment after seeing the world's pains and greed. Next is Kisa Gautami. She was a young mother whose only son had died. She was a loving and caring mother, but at the same time, she became selfish and wanted to get her son back after death. यह जो चैप्टर है यह गौतम बुद्धा के बारे में है, जो कि पहले एक राजकुमार थे और बाद में उन्होंने जो वर्ल्ड का जो दुख है, जो पेन है, उसको देखते हुए उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त करना चाहा। मीन्स स्पिरिचुअल जो धार्मिक जो ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहा था, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए उन्होंने वो अपना जो राजमहल था उसे त्याग करके एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने 7 साल बिताए और उसके बाद में उन्हें जो एनलाइटमेंट था वो प्राप्त हुआ। इसी चैप्टर में जो सेकंड कैरेक्टर है वो है किसा गौतमी। किसा गौतमी एक यंग मदर थी जिसका कि जो केवल एक बेटा था वो एक्सपायर हो गया था और इसलिए वो इधर उधर घूम रही थी, डोर टू डोर घूम रही थी कि कोई इसका इलाज कर जाए और वो पुनर्जीवित हो जाए। इसलिए किसी व्यक्ति ने जो किसा गौतमी थी उसे गौतम बुद्धा के पास भेजा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट पॉइंट इज बुद्धा एज अ प्रिंस। Gautam Buddha was born as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent for schooling in Hindu sacred scriptures. 4 years later, he returned home and got married to a princess. They had a son. They lived a royal life for 10 years. Gautam Buddha was born as a prince and whose name was Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent for schooling in Hindu scriptures. Sacred means pious. Scriptures means these sacred writings of a religion. जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनके बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वो 12 साल के थे तो उन्हें भेजा गया। 4 years लेटर 4 साल के बाद में ही रिटर्न होम, वो वापस आए एंड गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, और उन्होंने एक प्रिंसेस से मैरिज की। दे हैड अ सन। दे लिव्ड अ रॉयल लाइफ 10 years। उनके एक बेटा हुआ और वो 10 साल तक एक उन्होंने शाही जीवन जिया। नेक्स्ट, गौतमा फील्स सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। कैसे उन्होंने जो दुख हैं वर्ल्ड के उन्हें फील किया।
He was protected from the suffering of the world. One day he saw a sick man, an old man, a funeral procession, and a monk begging for money and food. This moved Buddha, and he went out to seek enlightenment. ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी सफरिंग ऑफ दी वर्ल्ड. वो बचे रहे जो सफरिंग थी, जो दुख थे वर्ल्ड के, उनसे. किंतु एक दिन ही सा अ सिक मैन, उन्होंने पहले एक सिक व्यक्ति को देखा, उसके बाद एन ओल्ड मैन से मिले, और बाद में उन्होंने एक फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया हो रही थी उसे देखा, और फिर देखा एक साधु को जो कि भीख मांग रहा था मनी और फूड की. दिस मूव्ड बुद्धा, और यह सब देख के वो वहाँ से मूव हुए. एंड ही देन वेंट आउट टू सीक एनलाइटमेंट, और फिर वहाँ से वो एनलाइटमेंट मीन्स अ स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करने के लिए चले गए. नेक्स्ट पॉइंट इज गौतमा सीक्स एनलाइटमेंट. कैसे उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया. ही ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years and then he stayed under a peepal tree until he attained enlightenment. After 7 days he got enlightened and renamed the tree as Bodhi tree. Bodhi tree means tree of wisdom. There he began to teach and share his knowledge and became known as Buddha. ही ट्रैवल, उन्होंने यात्रा की एमलेसली होके 7 साल तक. एंड देन ही स्टेड अंडर अ पीपल ट्री, फिर वो एक पीपल के नीचे बैठे. अंटिल ही अटेन एनलाइटमेंट, जब तक कि उन्हें एनलाइटमेंट मीन्स स्पिरिचुअल जो नॉलेज थी वो प्राप्त नहीं हो गई. आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद ही गोट एनलाइटमेंट, उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ. एंड रीनेम द ट्री, और फिर उन्होंने जो ट्री था उसका नेम बदल के क्या रखा, बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम. देयर ही बिगेन टू टीच, और वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया लेसन देना. एंड शेयर हिज नॉलेज, और अपनी उन्होंने नॉलेज को शेयर किया. एंड बिकेम नोन एज बुद्धा, और किस रूप में जाने लगे, बुद्धा के रूप में. नेक्स्ट, बुद्धा गिव्स हिज फर्स्ट सरमन. जो उनका पहला उपदेश था वो क्या था. बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस में उन्होंने दिया. इट इज़ द होलीएस्ट ऑफ द डीपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगेज. दिस सरमन रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू इंटरप्ट. बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो बनारस की सिटी में दिया. इट इज़ द होलीएस्ट ऑफ दी डीपिंग प्लेसेज, ये सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान है क्योंकि ये कहाँ पर है, गंगा नदी पर. दिस सरमन नेक्स्ट बुद्धाज विजडम, इस सरमन में बुद्धा ने अपनी जो बुद्धि थी अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग, जो बुद्धा ने जो अपनी दिस सरमन रिफ्लेक्ट करता है बुद्धा की विजडम को अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग, जो सफरिंग थी, जो पेन थे उनके लिए, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू इंटरप्ट, जो कि उसके द्वारा बताए नहीं जा सकते. नेक्स्ट किसा गौतमीज स्टोरी. अब जो किसा गौतमी की जो स्टोरी है वो क्या है. किसा गौतमी हैड ओनली वन सन हु हैड डाइड. She carried her dead son in her arms and went door to door asking for medicines for her dead child. The neighbors pitied her but couldn't help her as her son was dead. They were as helpless as Kisa and couldn't go against the will of God. Finally, somebody suggested that she should go to the Sakyamuni, the Buddha. Kisa Gautami went to meet Gautam Buddha. Gautama told her to bring a handful of mustard seeds from a house. Kisa Gautami had only one son. उनके केवल एक ही बेटा था किसा गौतमी के, who had died, जो कि मर चुका था. She carried her son, वो अपने जो मरा हुआ जो बेटा था उसे अपनी आर्म्स में उठाए एक घर से दूसरे घर जा रही थी. आस्किंग फॉर मेडिसिन, मेडिसिन के लिए, फॉर हर डेड चाइल्ड.
दी नेबर्स पिटीड हर, नेबर्स ने उस पर दया दिखाई, बट कुडंट हेल्प हर एज हर सन वॉज डेड, किंतु वह हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके बेटे, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि वो मर चुका था। दे वर एज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस थी, एज किसा, एंड कुडंट गो अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, और कोई भी गॉड की विल के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। फाइनली अंत में समबडी सजेस्टेड, किसी ने सुझाव दिया, दैट शी शुड गो टू द सक्यामुनि द बुद्धा, कि उसे सक्यामुनि के पास जाना चाहिए। सक्यामुनि कौन थे? वही द बुद्धा थे। किसा गौतमी वेंट टू मीट गौतमा बुद्धा, वो उससे मिलने गई। गौतम टोल्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस, तो गौतम बुद्धा ने उसे बताया कि वो एक मुट्ठी भर मस्टर्ड मीन्स सरसों के बीज लेकर आए, फ्रॉम अ हाउस, उस घर से, वेयर दैट हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, जहाँ पर अभी तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किसा थॉट दैट इट वॉज अ वेरी इजी टास्क, उसने सोचा कि यह बहुत आसान टास्क है। शी वेंट टू ऑल द हाउसेज इन द विलेज, और वो सब विलेज के घरों में गई, बट कुडंट फाइंड, किंतु उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ अभी तक किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। शी सैट डाउन, वो बैठ गई, होपलेस एंड टायर्ड। शी सून रियलाइज, फिर उसने रियलाइज़ किया, दैट शी वॉज बींग वेरी सेल्फिश, कि वो अपने दुख में इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो गई है। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए कैसी है? कॉमन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बुद्धाज रिप्लाई टू किसा गौतमी, उसका क्या रिप्लाई था किसा गौतमी के लिए? द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज ट्रबल, ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी much important, so listen this point very carefully. The life of mortals is trouble, brief and combined with pain. It is not possible to avoid death, as the ripe fruits are in danger of falling, as the earthen vessels made by the potter break. Similarly, the mortals have the danger of death. Wise men and fools all fall in the power of death. Only the wise do not grieve, and they accept the reality. All weeping and grieving will bring more pain and suffering to the body. One who is composed will obtain peace of mind and will be free from sorrow and be blessed. कि जो लाइफ है मॉर्टल्स की वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है, ब्रीफ है, संक्षिप्त है, और कंबाइंड है दुखों से। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि यह पॉसिबल नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो डेथ को अवॉइड करे। एज द राइप फ्रूट्स, जैसे कि एक पका हुआ जो फल होता है उसे हमेशा खतरा रहता है कि वो कभी भी नीचे गिर जाएगा। इसी तरीके से जो अर्थन वेसल्स होते हैं, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मेड बाय द पोटर, जो कि पोटर के द्वारा बनाए जाते हैं, सिमिलर द, इसी तरीके से ही वो भी किससे खतरे में होते हैं? डेथ के, कि उनका कभी भी टूटना निश्चित होता है। ऐसे ही वाइज मैन और जो फूल्स होते हैं, ऑल फॉल इन द पावर, सभी को एक ना एक दिन किसकी पावर में जाना है? डेथ की। ओनली द वाइज डू नॉट, केवल जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी के मरने पर दुख व्यक्त नहीं करते, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये क्या है? प्रकृति का नेचर है। ऑल वीपिंग, सभी लोग जो रोते हैं और दुख व्यक्त करते हैं वो किससे सफ़र करते हैं? पेन से, और उनकी बॉडी भी सफ़र करती है। वन हु इज़, और वह व्यक्ति जिसने कि इन सभी चीज़ों को मान लिया है, विल ऑब्टेन, तो उसके माइंड में हमेशा क्या रहेगी? शांति, और वो किससे फ्री रहेगा? सोरो से, और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए इस चैप्टर में जो मोरल है इस चैप्टर का वो यही है कि हमें किसी भी चीज़ का दुख ना कर करके उसे भूल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, और बजाय कि उस पर दुख व्यक्त करते हुए और विलाप करते हुए इन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, अपने दुखों को भूलना चाहिए। इसी तरीके से जब हम अपने दुखों को भूल जाएंगे तो हमारे माइंड में क्या होगी? शांति होगी, और हम हर दुखों से दूर रहेंगे।
Now, here are some sentences which are highlights this chapter. So, first is this lesson is about the life of Gautama Buddha, who was born in a royal family as Siddhartha. He was sent to study Hindu scriptures and later married as a princess. Once he saw a sick man, an old man, funeral procession, and a monk begging for money. These sights moved him and he went to search for enlightenment. He started meditating under a peepal tree and got enlightened after 7 days and became known as the Buddha. He preached his first sermon at Banaras. Once a woman came to him requesting to bring her dead son to life. Gautama Buddha asked the lady to bring a handful of mustard seeds from a house where there had been no death. The lady moved from one house to another but couldn't find a single house where no one had lost a child, husband, parents, or a friend. Then she came to know that death is common to all and it is the ultimate truth of life. So, students, I hope you must have understood this summary of this chapter. So, thank you so much, students.